Hello, dear students. How are you? I hope all are fine, safe, and healthy. Let's begin chapter 2 Safety and Home. Okay? जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए. Open your book and keep your practice notebook. Okay? And writing material near you. Okay? To study. And now, to motivate me, to support me, subscribe my YouTube channel and like the video. Let's begin. All are having first aid box in your house. सभी के घर में first aid box है, isn't it? है ना? Yes. So what do you see in first aid box? What are the things do you see in first aid box? क्या चीजें देखते हैं आप? क्या क्या सामान देखते हैं उसमें? Yes. See here. Dettol. What do you see? Dettol देखते हैं? Yes. Scissors? Yes. Bandage? Yes, very good. Do you see tomato? No. Cotton? Yes. Lipstick? No. Wrong. Shampoo? This is perfume? Do you see? No. And first aid? Yes, correct answer. So write in chat box and practice notebook. Yes. What? Which picture is this? Have you seen this picture? Whenever you go with your parents, so have you seen this type of picture? Yes. So who is it? Traffic policeman. Who is, which picture shown here? Of traffic police. Traffic police. So what does his her work? His or her work? क्या work है इनका? To control the traffic. What is the work of traffic police? ट्रैफिक पुलिस का क्या वर्क होता है? टू कंट्रोल ट्रैफिक. ओके, कि नोबडी शुड ब्रेक ट्रैफिक रूल्स. ओके, कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना चाहिए. सो दैट्स व्हाई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द ट्रैफिक. ओके, and in this chapter you will study about the safety in your house, safety in your school, and how can you become uh, be safe in your surroundings. Okay, so there are three pictures in front of you. What do you see in these three pictures? क्या देखते हैं? Yes, first picture, Amit slipped. Amit slipped while playing and hurt his leg. जब अमित खेल रहा था तो वो स्लिप हो गया और उसके पैर में चोट लग गई. ओके, अमित slipped while playing and hurt his leg. And now next is, what pictures does show? Yes, Annie. What is the name of this girl? Annie. Annie fell down the stairs and broke her arm. Annie स्टेयर से गिर पड़ी और उसकी आर्म उसकी जो बोन है वो ब्रेक हो गई, टूट गई. ओके, why Annie broke her arm while he or she was moving down to the stairs. Okay, and Gurpreet was trying to peel vegetables when he cut his finger. So this boy name is Gurpreet. Gurpreet was trying to peel vegetables. वो क्या कर रहा है? वो जो उसके पास जो वेजिटेबल्स हैं उनको वो क्या कर रहा है? उनका पील आउट कर रहा है. उनके जो पील्स हैं, उनके जो छिलके हैं, उनको उतार रहा है. When he cut his finger, and then during that time, during the cutting time, peeling time, he gets hurt in his finger. उसके फिंगर में क्या हो गया? उसके चोट लग गई. So be safe. So how can you be safe? How can you be safe? So you must be safe whenever you cut the vegetables. You should not use sharp objects. If you use sharp objects, you must use the sharp objects in the presence of any elder, okay, of your parents. Or whenever you just moving up on the stairs or moving down the stairs, so you must
Be careful. Okay, don't run or rush on the stairs. Be safe. So how can you safe? कैसे रह सकते हैं आप safe? Accidents happen suddenly. और जो एक्सीडेंट्स होते हैं दैट हैपन सडनली, अचानक से हो जाते हैं एक्सीडेंट्स. जो हमको चोट लगती है अचानक से लग जाती है ना, isn't it? So people get hurt in accidents or most of the time what happens कि एक्सीडेंट में हमको चोट लग जाती है. तो sometimes accidents can put lives in danger. और कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट्स में लाइफ खतरे में पड़ जाती है, डेंजर में पड़ जाती है. ओके, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी आर केयरफुल बाय बिकमिंग केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. और सेफ्टी रूल्स को भी हम फॉलो करके हम एक्सीडेंट से को अवॉइड कर सकते हैं और हम सेफ रह सकते हैं. ओके, सो बी सेफ इन क्लासरूम. और क्लासरूम में भी आपको सेफ रहना है. कैसे रहना है? बाय फॉलोइंग सम रूल्स of safety rules of classroom. Just see, do not hit anyone or throw things at them. Most of the time क्या होता है, during the lunch time students started running or rushing in the classroom during the lunch time, but you should not do like that. ऐसा नहीं करना चाहिए, otherwise you may get hurt. आपको चोट लग सकती है. So during that time you should not hit anyone. किसी को हिट नहीं करना है, किसी को पुश नहीं करना है. ओके, और ना ही उन पर कोई कुछ भी चीजें थ्रो करनी है. क्लियर? डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क. और कभी भी हमें डेस्क के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए. जो आपकी टेबल है उस पर नहीं चढ़ना चाहिए, उस पर जंप नहीं करना चाहिए, उस पर क्लाइंब नहीं करना चाहिए. क्लियर? Use a sharpener to sharpen pencils and do not use any other thing apart from sharpener. ओके, शार्पनर के अलावा आपको कुछ भी चीज यूज नहीं करनी है पेंसिल शार्प करने के लिए. ओके, ओनली यूज शार्पनर टू शार्प योर पेंसिल. क्लियर? बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सीजर्स एंड निडल्स. ओके, और आपको जब भी आप सीजर्स यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द एक्टिविटी टाइम और निडल्स व्हाइल जस्ट स्टिचिंग टाइम. सो यू मस्ट बी केयरफुल. आपको बहुत ही ध्यान से इन चीजों को यूज करना है. यू हैव टू यूज सीजर्स एंड निडल्स वेरी वेरी केयरफुली. ओके, यू मस्ट फॉलो एंड राइट डाउन दीज रूल्स इन योर प्रैक्टिस नोटबुक. तो इसका हम कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं? हाउ कैन वी फ्रेम द क्वेश्चन फ्रॉम दिस? नाउ डिस्क्राइब सम टिप्स और डिस्क्राइब अबाउट safety of classroom. Okay, safety in classroom. Or this question can come in other form. कैसे? What are the rules of classroom? What are the safety rules of classroom? How can you be safe in classroom? Okay, so do not hit anyone or throw things at them. Do not climb on the desk. Use a sharpener to sharpen pencils. Be careful while using scissors and needles. Okay, these are the main rules of safety rules of classroom. You must follow these. Okay, इनको आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं and you have to share with your friends. Clear everyone? Okay, very nice. And note down it in your practice notebook, all of you. Be safe in on the playground. अब हम playground में कैसे सेफ रह सकते हैं? तो there are some rules of playground. Okay, safety rules of playground. प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं. समटाइम्स इट हैपेंस कि जो जिसके स्पेक्स होते हैं, स्पेक्टिकल्स, वो अपने स्पेक्स क्या है पहन के जाते हैं. तो उससे क्या होता है, कोई भी बॉल हिट करेगा तो उसके स्पेक्स उससे ब्रेक हो जाएंगे, उससे टूट जाएंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट टेक आउट स्पेक्टिकल्स, स्पेक्स. आपका जो चश्मा है आईसाइट वीक का, उसको आपको अपने बैग में रख के वहां जाना चाहिए. ओके, and there are more other rules. Learn and follow the rules of
विच एवर गेम यू प्ले, आप जो भी गेम खेलते हैं उसके जो रूल्स होते हैं, यू मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर गेम विच यू आर प्लेइंग। जो आप गेम खेल रहे हैं उसके आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। ओके, एंड डू नॉट हिट अदर्स विद अ बैट, आपको किसी को भी बैट से, इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट तो आपको किसी से को भी बैट से हिट नहीं करना चाहिए। क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट इज अ बॉल और एनीथिंग, a ball or anything you must not throw, okay, on anyone, किसी पर भी बॉल फेंक के नहीं मारना चाहिए। and ball or anything which can cause injury, okay, इनको थ्रो नहीं करना चाहिए to hurt to anyone। wait for turn at the swing, अब आप स्विंग कर रहे हैं तो झूला झूल रहे हैं, तो यू मस्ट नॉट पुश और पुल टू एनीवन कि भाई मैं पहले झूलूंगा, आई विल स्विंग फर्स्ट, नो, यू मस्ट वेट फॉर योर टर्न, ओके, टू प्ले ऑन द swing, to enjoy the swings, okay, at the seesaw, at the seesaw, in fact everywhere, okay, चाहे कोई सा भी वो swing हो, so you must follow the safety rules। clear everyone? See, follow the rules of games and wait for your turn at the seesaw or any other game। clear everyone? Now walk on footpath, now be safe on road। अब आप, these are the safety rules of on the road, जो हमने भी पढ़ा था उसके बारे में कि सेफ्टी रूल्स प्लेग्राउंड के कैसे हैं। तो से फॉर एग्जांपल आ जाता है elaborate या फिर explain about the safety rules of playground, तो आपको वो लाइंस लिख देनी है, ओके, सेम टू सेम, तो योर आंसर विल बी करेक्ट। किसी भी फॉर्म में अगर आपके सेफ्टी रूल्स आते हैं प्लेग्राउंड के, लाइक इलाबोरेट सेफ्टी रूल्स ऑफ प्लेग्राउंड, तो आपको प्लेग्राउंड के रूल्स लिख देने हैं। और इफ द क्वेश्चन कम्स write safety rules on the road या describe the safety rules on the road or describe the safety rules of home, so you must write accordingly, and while answering you must read the question thrice, 3 times आपको क्वेश्चन read करना है whenever you answer in the exam। clear everyone? so be safe on the road, so walk on the footpath, okay, जो अलॉन्ग साइड, जो रोड के अलॉन्ग साइड में फुटपाथ बने होते हैं, सो यू मस्ट यूज टू वॉक। क्लियर एवरीवन? यस, वेरी नाइस। नाउ सिग्नल बिफोर टर्निंग, while you just you are just using bicycle or you are just running, so cycling you are doing, so at that time you must use that very carefully and use the bell, okay, to ring, to aware in the front if someone is coming in front, so you must use your bell। जो रिंग लगी हुई है, जो बेल लगी हुई है, उसको आपने प्रिंट करना है, ओके। सिग्नल बिफोर टर्निंग, और टर्न लेने से पहले आपको, उसको टर्न लेने से पहले क्या करना है, आपको सिग्नल देना है, ओके। जब भी कभी मोड़ आता है, टर्न आता है, सो यू मस्ट रिंग द बेल। क्लियर एवरीवन? एंड यू मस्ट ऑलवेज कीप योर बाइसाइकिल द लेफ्ट साइड, हमेशा अपने बाइसाइकिल को लेफ्ट साइड पे ही रखना है ऑफ द रोड। बी केयरफुल इन अ मूविंग बस, जब आप बस में जा रहे हैं तो यू मस्ट बी केयरफुल एट दैट टाइम ऑल्सो, देयर आर सम रूल्स ऑफ मूविंग बस ऑल्सो, ओके। वॉक ऑन द फुटपाथ, अब हम रोड की कैसे हम ये सारे सेफ्टी रूल्स आपको लर्न करने हैं, ओके, जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वॉक ऑन द फुटपाथ और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, जब भी आप जा रहे हैं और बाय फुट आप रोड पर जा रहे हैं, तो आपने हमेशा कहाँ वॉक करना है, यू मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ or on the safe side of if there is no footpath, then on the safe, you have to walk on the safe side of the road। clear everyone?
क्रॉस द रोड एट द जीब्रा क्रॉसिंग, और आपको रोड कब क्रॉस करनी है, जीब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करनी है। जो व्हाइट एंड ब्लैक जो लाइंस बनी होती हैं रोड पर, सिर्फ वहीं से रोड को क्रॉस करना चाहिए। ओके, यू मस्ट यूज जीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। before crossing, look to your right, then your left, and then again to your right. अब जब कभी भी आप क्रॉसिंग रोड को क्रॉस करते हैं तो पहले आपको कहाँ देखना है, पहले राइट देखना है, अगेन देन योर लेफ्ट हैंड साइड देखना है, उसके बाद अगेन राइट देखना है, देन ओनली यू हैव टू क्रॉस द रोड। क्लियर एवरीवन? आपको रोड क्रॉस करने से पहले पहले राइट की तरफ देखेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ देखेंगे, अगेन वापस से राइट देखेंगे, और उसके बाद आपने क्रॉस करनी है। Clear everyone? You must remember. Cross the road when it is clear and when the traffic stops. और जब कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है ना राइट से ना लेफ्ट से, और रोड बिल्कुल क्लियर है, then only you have to cross the road. You must remember all these points. Okay? And if there is a subway, और वहां पर अगर कोई सबवे बना हुआ है, अंडरपास बना हुआ है, तो use it to cross a road. In the place of crossing the road, so to cross in the you can zebra crossing ke apart from zebra crossing you can use subway also, overbridge also, okay, to cross the road. Clear everyone? Do not get into or get off a moving bus. कभी भी हमें ना तो मूविंग बस में से, चलती हुई बस में से, ना तो हमें उतरना चाहिए, ना ही हमको चढ़ना चाहिए जब बस चलती है रनिंग बस में, और ना ही कभी अपने हैंड को शेक करना चाहिए बाहर, और अपना डोंट लेट योर हैंड आउट फ्रॉम द विंडो इन द मूविंग बस। क्लियर एवरीवन? डू नॉट पुट योर हेड और आर्म्स आउट ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी आपको हेड को और अपनी आर्म को मूविंग बस से बाहर नहीं रखना है। ओके, अदरवाइज यू कुड गेट हार्म, आपको चोट लग सकती है। अब नाउ द वर्ड टू नो, सबवे। अब मैंने भी आपको बताया था सबवे क्या होता है, एन अंडरग्राउंड पैसेज। व्हाट इज सबवे? सबवे क्या होता है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। डिफाइन सबवे और व्हाट इज सबवे। सो एन अंडरग्राउंड पैसेज फॉर क्रॉसिंग अ रोड, जो रोड क्रॉस करने का जो रास्ता होता है वो अंडरग्राउंड में बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड सबवे। क्लियर एवरीवन? यू मस्ट नो। नाउ लेट्स assess your knowledge. Choose the correct answer. यूज अ ब्लेड नाइफ शार्पनर टू शार्पन अ पेंसिल। आप क्या यूज करेंगे अपनी पेंसिल शार्प करने के लिए? ब्लेड, नाइफ और शार्पनर। यस, करेक्ट आंसर, दैट इज शार्पनर। ओके, एंड क्रॉस द रोड एट द जिराफ, हॉर्स और जीब्रा क्रॉसिंग। आप क्या यूज करेंगे रोड क्रॉस करने के लिए? जिराफ, हॉर्स और जीब्रा क्रॉसिंग। यस, करेक्ट आंसर, जीब्रा क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज यूज or an, Broadway, Edgeway, Subway to cross the road. अभी मैंने बताया था रिसेंटली, क्या यूज करेंगे रोड क्रॉस करने के लिए? यस, यूज, क्या यूज करेंगे? यूज a subway to cross the road. Clear everyone? Very good. Now be safe at home. अब हम घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं? See, what do you see in the picture? There are some electrical equipments like iron, okay, and firecrackers, scissors, knife, matchbox. Okay, so these are given in the picture. So you should not play with these things. You should not play with iron. Iron से आपको कभी नहीं खेलना है. Okay, don't play with iron. Don't play with firecrackers like rocket, patakas, okay, and don't play with matchbox. Do not play with scissors. Do not play with knife. Okay, means sharp object से आपको play नहीं करना है. Don't take risk. Be safe at home. अब आप घर पे कैसे safe रह सकते हैं? Write down these points. Do not leave your toys. आपको do not leave your toys, bag, shoes,
ऑन द फ्लोर। आपको फ्लोर पर कुछ भी ये सब चीजें नहीं रखनी है। ओके, यूज सम, यस, इससे क्या होगा, इफ यू विल कीप और आफ्टर प्लेइंग यू विल let them on the floors, your toys, bags and the shoes. If you will not pick up them, so what will happen, someone can fall down. Okay, कोई भी गिर सकता है और could trip over them, उसके ऊपर पैर रख के भी ट्रिप कर सकता है, fall down हो सकता है, and then get harm in their body or injured and break the bone. Okay, कुछ भी हो सकता है, anything can happen. So do not leave these things, toys, bags and shoes. You must keep in their proper place. After going home from the school, after returning from the school, you should keep your toys, bags and shoes in their proper place. हर चीज मम्मा नहीं रखेगी, आपको भी कुछ एफर्ट्स करने हैं. You must keep your things yourself arranged. आपको अपनी चीजें खुद ही अरेंज रखनी है. Okay? Be careful with sharp things like knives. अगर मम्मा का पैर उस पे स्लिप हो गया आपके शूज पर, या वो उनको गिर गई उस पे पैर रखने से, तो आपको अच्छा लगेगा? डू यू लाइक दैट थिंग? नो. तो फिर you must do promise with your mama कि मम्मा from today onwards I'll keep my things at proper place. Okay? कोई इंजरी ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए आपको अपनी चीजें प्रॉपर प्लेस पे रखनी है. क्लियर एवरीवन? वेरी गुड. तभी आप गुड स्टूडेंट्स बन सकते हैं. ओनली देन यू कैन बिकम गुड स्टूडेंट्स एंड नाइस चिल्ड्रन. बी केयरफुल विद शार्प थिंग्स लाइक नाइव्स. और आपको शार्प थिंग्स लाइक नाइव्स, ब्लेड, सीजर्स, इन सब से केयरफुल रहना है. ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ समवन elder or your parents you can use these things. You may hurt yourself, otherwise you may hurt yourself. अगर आप कोई घर पर नहीं और आप यूज करेंगे ऐसी चीजें, sharp things, sharp objects, then you may hurt. आपको चोट लग सकती है. Fire can hurt you very badly. और पता है फायर से तो बहुत ज्यादा आप हेड ये हर्ट हो सकते हैं, जल सकते हैं, बर्न हो सकती है आपकी बॉडी. अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना है आपको. ओके, डू नॉट बर्न एनीथिंग. और लाइटर से गैस को बर्न नहीं करना है, गैस फ्लेम को नहीं बर्न करना है, ताकि वो इससे क्या आपको हार्म हो सकता है, आपकी स्किन जल सकती है. बी केयरफुल नियर स्टोव. आपको स्टोव के जब पास में है तो एकदम केयरफुल रहना है. डू नॉट टच हॉट पैंस और बॉइलिंग वाटर. और आपको बॉइलिंग वाटर को और हॉट पैंस को टच नहीं करना है. क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ look at the next one. Yes, while lighting candles. जब आप कैंडल्स को जलाते हैं, hold them away. जब भी इसके रूल्स क्या हैं? What are the rules? You must remember. आपको रिमेम्बर रखने हैं कि इसके क्या रूल्स हैं. Okay, while lighting candles and matches, hold them away. Do not touch electrical gadgets or switches with wet hands. आप जब कैंडल्स और मैचेस को जब आप जलाते हैं तो उनसे थोड़ा होल्ड देम अवे, उनसे सेफ्टी रखनी है अपने आप को. कैंडल हाथ में लेंगे तो हॉट वैक्स आपके हाथ पे गिर सकती है. मैच बॉक्स जलाते तो वो एकदम से टूट के आपके ऊपर आ सकता है. तो इसलिए बी केयरफुल while lighting. And do not touch electrical gadgets, switches with wet hands. और with गीले हाथों से आपको कभी भी wet hand से आपको यूज नहीं करना है. कोइन से जो भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं गैजेट्स, उनको यूज नहीं करना है wet hand से. ओके, you may get an इलेक्ट्रिक शॉक. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए इन चीजों से आपको यूज नहीं करना है. टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट. जब और अपने आप दवाई नहीं खानी है जब तक कि आपसे कोई आपसे बड़ा आपको नहीं देता है दवाई खाने के लिए, तब तक आपको नहीं खानी है. ओके, अपनी मर्जी से नहीं खानी है. कभी फीवर हो गया, मम्मा तो मुझे ये वाली दवाई देती है और मम्मा उस टाइम वहां पर नहीं है और खाना स्टार्ट कर दे. नो. ओके, so whenever mama give you or any other elder gives you medicine, then only you must have. Okay, and now
Do not play with plastic bags, bed sheets, pillowcases by pulling them over your head. और कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो some students और some children do like this, वो बेड शीट से, प्लास्टिक बैग से, पिलो केसेस से, और उनको पुल करके, खींचा खाची करके अपने सर पे उसको लपेट के उसको चारों तरफ हेड कवर कर लेते हैं बेड शीट से, प्लास्टिक बैग से, बेड शीट्स, पिलो केसेस से। तो इन सब चीजों से भी नहीं खेलना चाहिए। ओके, समटाइम्स इट मे हार्म यू। आपको कभी किससे चोट भी लग सकती है प्लास्टिक बैग से, कभी नहीं निकलता, निकले अगर आपने उसमें अपने फेस पर फंसा लिया है तो डोंट डू लाइक दैट। ओके, रिमेम्बर दिस थिंग, these things also very harmful। आपको नहीं यूज करना है खेलने के लिए इन सब चीजों को, बेडशीट शेक को खेलने के लिए यूज नहीं करना। क्लियर एवरीवन? नाउ फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड समझ लीजिए। द क्वेश्चन कैन कम, क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि व्हाट इज फर्स्ट एड या डिफाइन फर्स्ट एड, और व्हाट आर द थिंग्स you keep in your first aid box, and you must do practice of drawing, making the things whatever kept in the फर्स्ट एड बॉक्स। जो भी आप फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं उनको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। एंड एज वेल एज यू मस्ट लर्न व्हाट इज फर्स्ट एड, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। सो लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। आफ्टर एन एक्सीडेंट द फर्स्ट हेल्प an injured person gets, that is called first aid। यहाँ से यहाँ तक आपका ये आंसर है। ओके, डिफाइन फर्स्ट एड, तो आप तो सेम आंसर, डिफाइन फर्स्ट एड, व्हाट इज फर्स्ट एड, व्हाट इज, तो ये सब क्या है, इसका आंसर है आप कर रहे नहीं कर रहे हो पापा, अपनी पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं कर दो। if one of your friends get hurt, और अगर आपको फर्स्ट एड करना आता है तो आप अपने फ्रेंड की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए द गिवन टिप्स है यू मस्ट नो। ओके, कि कैसे फर्स्ट एड करते हैं वो आपको ये सीखना है। तो ध्यान से सुन लीजिए, लिसन केयरफुली एवरीवन, to give the first aid to your friend or to anyone, to an injured person। clear? so इसके लिए फर्स्ट एड के लिए क्या करना है, you need to give first aid before an adult can reach you। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट एड देने से पहले आपको किसी बड़े, अपने से बड़े पर्सन के पास जाना है। यू हैव टू रीच टू एन एडल्ट पर्सन। हियर इज व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, द थिंग्स आर हियर। कीप काम, एकदम काम रहें, एकदम शांत रहें, कूल रहें। डोंट स्क्रीम, डोंट शाउट, आपको शाउटिंग नहीं करनी है, एकदम शांत रहना है, घबराए नहीं। डोंट स्केयर, डू नॉट क्राउड, भीड़ न लगाएं अराउंड द इंजर्ड पर्सन। जिसकी चोट लग गई है उसके चारों तरफ क्राउड ना करें, कभी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इन मैनी चिल्ड्रन स्टार्टेड कलेक्टिंग टू अराउंड an injured person। okay, so do not do like that। call a doctor or an adult। अगर आपके पास कोई नहीं है तो अगर आप किसी को एडल्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इफ यू नो अ डॉक्टर फोन नंबर, तो यू कैन कॉल, मेक अ फोन कॉल टू अ डॉक्टर आल्सो। क्लियर? डू नॉट लेट द वुंड ब्लीड, और उसकी घाव से, जो भी इंजर्ड पर्सन है उसके घाव से, उसके वुंड से, तो जो उसका जो वाउंड है तो उसके वाउंड से ब्लड नहीं बहने देना है आपको। सो लॉस ऑफ ब्लड इज हार्मफुल। अगर बहुत सारा ब्लड बह जाता है तो क्या होता है, उससे क्या है, अगर वाउंड से ब्लड बहुत सारा बह जाता है तो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द इंजर्ड पर्सन। क्लियर? Now what words to know? Words to know है wound। What is wound? तो आपने आंसर क्या लिखना है, a cut on the skin that is called भी लिख सकते हैं और known as भी लिख सकते हैं, that is known as wound। A cut or on the skin that is known as wound। Clear everyone? Yes। Now next is clean the wound with an antiseptic lotion। और आपको क्या करना है, you have to clean the wound with an antiseptic lotion।
जो घाव है, जो वाउंड है, उसको एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करना है, कॉटन लेकर, एंड टाई अ क्लीन हैंकी और अ बैंडेज ओवर द वुंड। और जो घाव है उसकी चारों तरफ या तो साफ एकदम क्लीन हैंकी बांध देना है अराउंड द वाउंड, और या फिर बैंडेज लगा देना है। क्लियर एवरीवन? मेक द इंजर्ड पर्सन सिट और लाई डाउन। और जो इंजर्ड घायल जो व्यक्ति है, जिसको चोट लगी है, सो यू हैव टू, उसको क्या करना है, आपको उसको या तो बिठा देना है एक सेफ प्लेस पर, या फिर उसको लिटा देना है। क्लियर? सो यू मस्ट रिमेम्बर, कीप द वंडरफुल पार्ट ऑफ द बॉडी रेज्ड, कीप द वाउंडेड पार्ट, जो जो जिसमें जख्म लगा है या जो घायल, जिसमें चोट लगी है, जो वाउंडेड पार्ट है, तो उसको क्या रखना है, ऑफ द बॉडी रेज, उसको ऊपर की तरफ रखना है। क्लियर एवरीवन? अगर से फॉर एग्जांपल पैर में लगी है, लेग में चोट लगी है, हाँ, लेग में वाउंड है, तो उसके नीचे कुछ सपोर्ट रख देना है। क्लियर? कोई पिलो ला के रख देना है। कंफर्ट योर इंजर्ड फ्रेंड, आपके जो फ्रेंड है जिसको चोट लगी है, जो इंजर्ड हुआ है, उसको कंफर्ट जोन में रखना है। क्लियर एवरीवन? यू मस्ट रिमेम्बर ऑल दिस पॉइंट्स, सबको ये पॉइंट्स लर्न करने हैं। थिंक ग्रीन, गिव द फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड एनिमल और द बर्ड एंड सेव इट फ्रॉम पेन और डेथ। आपको थिंक ग्रीन कैसे सोचना है? आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन कैसे सोच सकते हैं। ऐसे सोचना है, जस्ट सी, आपको फर्स्ट एड देना है किसको, काइट फ्लाइंग करते हैं ना मकर संक्रांति पे आप लोग करते हैं ना, तो बहुत सारे इंजर्ड एनिमल्स होते हैं, बहुत इंजर्ड बर्ड्स होती हैं, जो उसकी जो थ्रेड से, काइट फ्लाइंग के जो थ्रेड होता है उससे उनके किसी के पंख कट जाता है, किसी को हार्म हो जाता है, वो इंजर्ड जाते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो उनको सेव करना है, उनको फर्स्ट एड दे के, एंड यू कैन सेव देम। And don't fly kite because this harm animals very badly, so you must not do, you must not flying the kites, it is very dangerous for the animals, for the birds as well. Clear everyone? तो आप बर्ड्स एंड ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स को सेव करना है आपको, उनके दर्द से उनको छुटकारा दिलाना है, उनको डेथ से, उनको मरने से बचाना है फर्स्ट एड देगा, तो आपके पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए। ओके? वेस्ट इज एनीथिंग लेफ्ट ओवर एंड नॉट यूज्ड। आप कुछ भी वेस्ट करते हैं और उसको यूज नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, वी मस्ट लर्न टू रिड्यूस वेस्ट। कैसे वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस किया जाए, कैसे हम कम से कम वेस्ट मटेरियल को फेंकें, आपको ये चीज के बारे में सोचना है। और यू मस्ट यूज द ओल्ड थिंग्स एंड रीयूज देम इन एनी अदर वे। देयर आर मेनी थिंग्स एंड मेनी वेज टू रीयूज वेस्ट मटेरियल। Choose things that can be reused such as cloths, towels instead of paper napkins. आप जैसे पेपर नैपकिन यूज करते हैं, तो आपको उसकी जगह पर क्या यूज करना है, in the place of using paper napkins you can use cloth towels. Okay? तो आपको पेपर नैपकिन को अवॉइड करना है, यूज करना अवॉइड करना है। Reuse of things like cardboard boxes, jars, cards and envelopes and bags. आपको प्लास्टिक बैग्स यूज नहीं करने हैं इन द प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम द प्लास्टिक बैग्स, यू कैन यूज boxes, jars, cards and envelopes and bags. और जो ओल्ड वेडिंग कार्ड्स होते हैं उससे आप क्या बना सकते हैं, उससे आप एनवलप्स बनाते हैं, जो आप गिफ्ट करते हैं ना, आप उसमें कुछ मनी रख के देते हैं, उसमें प्रेजेंट करते हैं किसी वेडिंग में, किसी बर्थडे पार्टी में, तो वो आप घर पे भी ओल्ड जो वेडिंग कार्ड्स हैं आपके घर में आए हुए हैं उनसे बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स में, फ्लावर्स बनाने में, बहुत सारी चीजों में आप ओल्ड
शीट्स को यूज कर सकते हैं। जो वन साइडेड आपने बना लिया है उसके बाद जो अदर साइड प्लेन है तो आपको यूज कर सकते हैं। तो इन दिस वे यू कैन सेव मैनी थिंग्स। आप मैनी ट्रीज, आप इस तरीके से बहुत सारे ट्रीज को सेव कर सकते हैं। होम इज द बेस्ट। होम हमारा कैसे बेस्ट है? आवर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम द हीट, सन, लाइट, कोल्ड, रेन एंड स्टॉर्म्स। जो सनलाइट और स्कॉर्चिंग जो हीट है उससे हमारे को बचाता है, हॉट विंड से बचाता है। हमारा जो हाउस है हमको एकदम क्या करता है, सेफ रखता है। किससे? हीट ऑफ द सन, कोल्ड से, ठंड से बचाता है, फ्रॉम द रेन एंड द स्टॉर्म। जो तूफान आते हैं ना, एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, ब्लो होती हैं, उनसे भी हमको सेव करता है। तो यू मस्ट कीप योर हाउस क्लीन। आ गुड हाउस। अब गुड हाउस के क्या उसके रूल्स हैं और क्या कैसा होता है गुड हाउस? हाउ डिफाइन अ गुड हाउस? आप गुड हाउस को कैसे डिफाइन करेंगे? द रूम्स इन अ हाउस शुड बी एरी एंड वेल लिट। जब भी आपके पेरेंट्स आपके हाउस बनाते हैं तो आपने अपने पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना है? ये हाउस कैसा होना चाहिए? दीज आर द टिप्स ऑफ अ गुड हाउस। अ गुड हाउस शुड बी एरी, अच्छे से प्रॉपरली वेंटिलेटेड होना चाहिए, अच्छे से हवा आनी चाहिए, वेल लिट, ओके, अच्छे से लाइट भी आनी चाहिए सन की, सनलाइट इज आल्सो नेसेसरी। अ हाउस शुड हैव ओपन स्पेस लाइक अ वेरेंडा। और हाउस के अंदर आजकल क्या है, सब कवर्ड हाउस बना लेते हैं और वरांडा तो रखते ही नहीं है। दिस इज नॉट गुड। ओके, तो पहले के टाइम में, इन द एंशिएंट टाइम, सब लोग एक वरांडा जरूर रखते थे, एक कोर्ट यार्ड जरूर रखते थे। एंशिएंट पीपल ऑलवेज कैप्ट वरांडा और कोर्ट यार्ड इन देयर हाउसेज। ओके, तो वरांडा और कोर्ट यार्ड में आपके ध्यान रहे कि वरांडा एंड कोर्ट यार्ड बनाना है। ओके, किसमें? एक अच्छा हाउस के लिए आपको ये जरूर चाहिए, तो बनाना ही बनाना है। These gives us fresh air because आपका क्या देता है, वरांडा में आपका ओपन एरिया होता है, ओपन स्पेस होता है, तो वहां पे आपको फ्रेश एयर मिलती है। एंड सनलाइट, प्रॉपरली सनलाइट मिलती है आपको। एंड द प्लेस, ओके, तो आपको और क्या है? सनलाइट है एंड प्लेस टू प्ले इन, और आपको खेलने के लिए एक अच्छे से स्पेस भी मिल जाता है ना, खेलने के लिए। अ हाउस शुड हैव अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो एक जो अच्छा हाउस है तो उसमें कैसा होना चाहिए? हाउस शुड हैव अ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। जो ड्रेन्स, जानते हैं ना, ड्रेन्स जो वेस्ट आपके जो वाटर होता है, जैसे मम्मा किचन में काम करती है तो उसका जो वेस्ट वाटर कहाँ जाता है? वो ड्रेनेज ही तो होता है, उसमें से, ड्रेन्स में से। और वॉशरूम्स हैं, वहां पे भी आपके ड्रेन्स बनी हुई होती हैं। तो हाउस शुड हैव अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम एंड carries dirty water away from the house. Okay, what is drainage system? A house that have a well planned drainage system that carries dirty water away from the house. वही एक ये गुड हाउस का एक सिम्टम है। क्लियर? And doors and windows should be fitted with the wire netting to keep flies and mosquitoes away. और जो doors और windows हैं, you can see here, doors and windows कैसे होने चाहिए? Should be fitted with the wire netting. ये wire netting है, you can see this is called wire netting. तो इस तरह की वायर नेटिंग होनी चाहिए डोर्स और विंडोज पे के अंदर। एक डोर्स और विंडोज के अलावा भी एक ऐसी वायर नेटिंग जरूर होनी चाहिए to avoid, to keep flies and mosquitoes away from the house. Care of the house. अब हाउस की केयर भी करनी है आपको। ओके, तो हाउ there are some tips to care of the house. Drains from the kitchen and the bathroom must be covered. जो ड्रेन्स हैं, जो नालियां हैं फ्रॉम द किचन, आपके किचन के अंदर भी ड्रेन बनी हुई है, आपके बाथरूम में भी ड्रेन बनी हुई है, तो दैट मस्ट बी कवर्ड, और उनको कवर्ड होना चाहिए, कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। इन द एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम में, ओल्डन टाइम में ये सब ओपन रहती थी तो बहुत डिजीजेस स्प्रेड होती थी और इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि these drains must be covered which are made in the house. Mosquitoes breed in uncovered drains
और इन द डर्टी वाटर दैट कलेक्ट्स नियर द हाउस। और आपके हाउस की चारों तरफ भी आपको ध्यान रखना है, कोई डर्टी वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर अदरवाइज इफ द डर्टी वाटर इज देयर देन मॉस्किटोज ब्रीड ऑन दोस डर्टी वाटर्स। और ड्रेन्स अगर खुली हुई है तो उसके अंदर भी डर्टी वाटर में क्या होता है, मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं, दे स्प्रेड डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, और इतनी डेंजरस ये डिजीजेस स्प्रेड हो जाती हैं, मलेरिया एंड डेंगू एंड चिकनगुनिया आल्सो। ओके, एंड वॉश बेसिन्स, टॉयलेट्स, bathrooms must be washed and cleaned। और आपको डेली वॉशरूम्स और क्या होने चाहिए, आपके क्लीन होने चाहिए, रोज उनको धोना चाहिए, सफाई करनी चाहिए उनकी ऑन द रेगुलर बेसिस, these must be cleaned and डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट ले एग्स इन द डस्टबिन। और आपके जो डस्टबिन होते चाहिए वो भी कवर्ड होने चाहिए सो दैट इसमें क्या है, जो ओपन डस्टबिन होते हैं उसमें एग जो है जितने भी फ्लाइज है, मक्खियां हैं, वो क्या करती हैं, ब्रीड कर देती हैं, अपने एग्स दे देती हैं इन द रबिश, जो कचरे में। ओके, गार्बेज मस्ट बी थ्रोन इन द प्रॉपर डंपिंग प्लेस। और जो आपका गार्बेज है उसको कहाँ फेंकना है, don't throw on the road, throw only on the proper place, on the dumping place। clear everyone? Curtains must be washed regularly। और जो curtains हैं उनको रेगुलर बेसिस पे वॉश करना चाहिए। जो घर के अंदर कर्टेन्स लगे हुए, पर्दे लगे हुए हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना चाहिए, बिकॉज डस्ट जो है वो भी, डस्ट से भी डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। ओके, जो डस्ट है उसमें भी जो मॉस्किटोज और अदर थिंग्स हैं और क्या होती है, उससे डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपने अपनी हेल्प करनी है, किसमें हेल्प करनी है, अपने हाउस को क्लीन करने में, रखने में हेल्प करनी है। हाउ कैन यू डू, यू कैन कीप योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। ऐसे नहीं है कि अपने सामान कोई भी खेलने के लिए उठाया, बैट को वहीं छोड़ दिया, बॉल को वहीं छोड़ दिया, नो। और इफ यू आर ईटिंग योर फूड यू मस्ट कीप योर यूटेंसिल्स इन द किचन। सारा काम ये नहीं है कि पेरेंट्स ही करेंगे, नो, यू मस्ट हेल्प योर पेरेंट्स इन द टू क्लीन योर हाउस। कैसे कर सकते हैं, बाय कीपिंग द यूटेंसिल्स एट द प्रॉपर प्लेसेस एंड बाय कीपिंग योर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, एज योर आपके क्लॉथ्स हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, आपके टॉयज हैं, बुक्स हैं। तो whenever you finish your work you keep the things at their proper places। clear everyone? Make your house a happy place, pleasant place to live in। okay, I think सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। stay safe, stay healthy। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसमें चैप्टर 4 की बनाऊंगी और उसके बाद मैं आपके ये रिवीजन एक्सरसाइजेस बनाऊंगी, उसकी वीडियो बनाऊंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लाइक द वीडियो एंड एंजॉय हॉलीडेज एंड लर्न एज वेल। ये नहीं है हमेशा खेलना है, ऑलवेज मेक योर फॉलो द टाइम टेबल वॉट एवर मेड बाय यू और योर पेरेंट्स। okay, stay safe, stay healthy, bye bye।